का घर पे आ जाऊँ मैम तो मैं मैम कैमरा ऑन नहीं कर सकता मैम, लेकिन हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, आई गॉट इट, है ना। फाइन, चलो हमने स्टार्ट किया था नेचुरल फिनोमिनन, राइट। इंट्रोडक्शन वी नीड टू स्टार्ट नाउ, राइट। नेचुरल फिनोमिनन, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ coal and petroleum. Fine, we have decided that we'll start with this first natural phenomenon, then we'll continue with coal and petroleum. So we'll wait for a few minutes and then we'll start. Okay, so mainly, okay, we'll start at 4:30 p.m. I think all of you are there, right? No one left. Girls, I can see girls. We'll wait for 1 or 2 minutes. Okay, fine. So we'll start with this some natural phenomenon. We have discussed there are few examples that we can discuss in the case of natural phenomenon. Mainly, it's earthquake and thunderstorm, or you can say that the lightning we are going to study. Okay, so we are going to divide this chapter into two parts. First one is lightning and second one is earthquake. Fine. So before that, we need to understand that lightning is basis. Yes, but I can see only 2 students. Their videos are on. Okay, make sure that I can understand the genuine reason, but okay, fine. So girls are also there now. Now we can start, beta. What we have started is, but chapter will divide mainly into two parts. How was your exam? Yes, beta. Yes. मैम किसकी कोई अनम्यूट है, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। हाँ ठीक है, I'll manage that. No one is unmuted, beta. No one is unmuted right now. Okay. So our chapter we are going to divide it into two parts. First is lightning. Second one is earthquake. Fine. First of all, lightning. Now lightning is related to charges. So we need to understand first of all what's the meaning of charges. And if we have to understand what is the meaning of charges, we need to understand atomic structure. Why? Because if we take our example, if I am going to touch any electrical devices directly, okay, or electrical current, so what will happen? It will pass through my body because I am a very good conductor of electricity. Right? It means if electricity can pass through my body, it means that we are also consisting of charges. Can we say that? Electricity word is related to. Ma'am. Yes, beta. Ma'am, which chapter we are going to do? Yes, it is some natural phenomenon. We have discussed. Ma'am, you mean charges means conductors? I'll come to that one. Yes. Ma'am, that positive and negative charges, na? Yes, beta. Positive and negative charges. Yes. See, Sagnik, you are saying that conductors conductivity is one type of property. Okay. Who is going to give you that property? So your charges are going to give that property. Okay. Property means what? You know that water is without any shape, tasteless. Okay, that is the property. So if you are going to pour that, but in between, please mute yourself. Okay, if you are having question, you can ask. Definitely, you can ask. Okay, so that's what we are going to discuss. To understand, first of all, we need to understand what is electricity. Electricity simply means electrons. Okay, but you need to understand what's the meaning of electrons. So it's something like if we need to understand this lightning, we need to understand first of all charges. If we have to clear the concept. Ma'am, please tell someone to unmute. Ma'am, mute themselves. Who is unmuted? All of them are already muted. Okay.
Jay, all of them are already muted. Still you are facing the issue. आवाज आ रही है बैकग्राउंड आवाज जो बैकग्राउंड आवाज आ रही है ना, ड्रिलिंग की, लिटिल बिट ड्रिलिंग यस फ्रॉम माय साइड, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ओके, नो प्रॉब्लम मेरे साइड से आ रही है, बाजू के यूनिट से। यस मैम नो प्रॉब्लम Okay, अगर ड्रिलिंग की आ रही है तो दैट इज फ्रॉम माय साइड, अदरवाइज और कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है मेरे साइड से, ठीक है। I think today only we are going to face it, otherwise you will not face it, okay. Today fine. So coming back to that point, we have discussed one thing, है ना, everything present in this universe at the end is made up of atom. After that we don't know is made up of what, okay. atom के आगे हमें कोई और स्ट्रक्चर अभी तक आप जितना भी स्टडी करोगे 12th स्टैंडर्ड तक हमें आगे का पता नहीं है, but the last portion is atom, okay. Suppose if I will tell you that we are made up of what, so you will say that we are made up of different organ system, means we are whole body. This body is made up of organ system. Organ system is made up of organs. Organs are made up of what? cells Tissues. ma'am tissues are made from cells Consisting of different organelles. Again, cell at the end is made up of what? Atoms. Okay, right now cell is the construction or functional unit, है ना, उससे आगे फिर हमें और कुछ नहीं पता। या फिर सेल जिससे बना है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? सपोज वन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपने शुगर एंड स्टार्च स्टडी किया है फोटोसिंथेसिस में, राइट। सो आगे शुगर और स्टार्च किससे बना है? एट द एंड आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन क्या है? दैट इज वन टाइप ऑफ एटम, बस दैट्स इट। फिर उसके आगे कुछ नहीं, समझ में आया? एट द एंड क्या है स्ट्रक्चर? एटम। तो एटम इज मेड अप ऑफ व्हाट? So that is proton, neutron and electron. Proton is positively charged, neutron is neutral, and electron is negatively charged. Now what's the meaning of positive charge and negative charge? Okay, positive charge means simply you are having one battery cell, right? So you will see positive side and negative side. So on the negative side electrons are more in number, and on the positive side protons are more in number. On positive side you will find out, okay, but I will take that. We definitely will take all the questions. Okay, let me complete this introduction. Yes, beta. Ma'am, which chapter we are doing? Okay, I'm repeating once again. Some natural phenomenon. We have started some natural. Chapter 13. And our chapter will divide mainly into two parts. First is lightning, and second is earthquake. That is natural phenomenon. Natural phenomenon means we cannot control the things. Okay, we cannot control that phenomenon. Right? and that phenomenon is in the hands of nature. Flood. Yes, beta. Yes. That phenomenon are in the hands of nature. Correct. Okay, that we cannot control. Only one thing we can do, that is we can protect ourselves. That's it. Okay. Ma'am, take precaution. Yes, we can take precautions. To protect, we need to take the precautions. Okay, that we will discuss once we'll complete that. Yes, Kevin. Yes, you are smiling. Great. I think you are joined today, beta, Kevin. No, ma'am. so I'm see, but I think okay, you were keeping your video off. Yes, ma'am. Great. Okay, that's fine. Yes, ma'am. Okay, Shaurya, I can see so many new faces, or maybe you were not keeping your videos on. Okay, fine. Okay, first thing is clear. So now your battery cell is consisting of positive and negative side. Okay, but I have taken the preparation of tomorrow test. Yes, Sagnik. Okay, we were discussing that only, that your test is tomorrow. No ma'am, the tomorrow के बाद परसों. Sagnik and Yash, both of you are there in same school? No Same ma'am. class? मैम ट्यूशन की बात है, ट्यूशन की साइंस की परसों. No, you are talking about Sagnik. What, beta? Ma'am, I am talking about school, ma'am. Tomorrow is my test in my school of chapter 18, and you School, have no? told a case study. Yes, Yash, ma'am. he is talking about beta. In between, please, no discussion, okay? While we are discussing introduction, in between, you are not going to break the link, okay? Last 10-15 minutes, definitely we will discuss all the things related to this, fine? And we already discussed that, but as Sagnik, because within one day we are not Yes, ma'am. complete that. So we have decided that we are going to Yes, continue ma'am. later on, right? And last session we have discussed regarding that Okay, ma'am. studies, just a brief introduction, study. right? Yes. Fine. So coming back to this point,
proton are positively charged means they can donate something. Someone can receive something, then that is negatively charged. Right now, just consider that. Now, why we are discussing charges first of all? Because your lightning is completely the principle, how it's going to happen. The principle behind that lightning is charges. Okay, different charges. That's why we are discussing. Now, it's something like if you are having one, consider you are having one magnet, right? If this is the magnet and this one is the iron rod or something that is made up of iron, okay? If the distance is something like this, so definitely is going to attract. That is the natural property of magnet. But if I'm going to keep this or your magnet away from each other and the distance is too far, what will happen? Is it possible to see this magnetic effect? No. No, So ma'am. distance will depend, right? Second thing, if consider this is our magnet and this one, this is our iron thing. Okay, it can be anything. Fine. So what will happen if I'm going to put a solid block here in between both of them? Ma'am, can I Is say? it- Yes, beta. Yes. Ma'am, if that solid block will be thick, the magnetic effect will not take place. But if the solid block is thin, that if the magnetic effect will take place. Yes. Ma'am, it So it means that we are depends on the magnetic field. correct. Means the power of that magnetic Magnet. power, right? But consider, see, this is the size of your magnet and iron thing, right? But if I am having this size of any wooden block that I'm going to keep in between, is it possible to see that magnetic effect? No, simply no. ma'am. Right? No, So ma'am. now ma'am. consider that we are having our clouds here and our land is something here, okay, somewhere here. So this is our land and this is our cloud. We are going to see lightning now, okay? You will see two types of lightning. One is, suppose consider this is one type of cloud, this is second type of. One you will find out between the clouds and one you'll find out that will penetrate, it will just touch the ground as well, है ना? दो टाइप की बिजली देखने मिलेगी मॉनसून में, एक होगी अंदर अंदर बादलों के अंदर होगी, राइट? एंड सेकंड विल जस्ट टच द Ground ग्राउंड. Which comes to the ground or touch. Comes to the ground. लाइटनिंग के लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? चार्जेस, है ना? Charges. इसकी हमने थियरी कहाँ से स्टार्ट की? चार्जेस से. बट अब एक Charges. यहाँ पे we need to understand first of all that electrical charges, and for that inside your textbook one activity is there, okay? Statistic or that static and dynamic electricity. What do you understand by that? Static. Ma'am, can I try? Yes, beta. Ma'am, static energy means if we rub any plastic, plastic polythene bag. Simple. Meet. Don't tell me any example. Suppose if I will say, चलो साइंस को बाजू में रखते हैं. Static का मतलब क्या होता है? What's the meaning Ma'am, of to stick. stick? Means it's not going to move, right? Stick means it's not going to move, right? Can we say that? Yes. Yes, ma'am. Still form, and a still form like statue. Dynamic का मतलब क्या होगा? What's the meaning of dynamic? मैम मतलब कुछ बॉम्ब जैसा. Sorry, अगर कुछ हम अगर कुछ बॉम्ब या कुछ बारूद टाइप डायनामिक. okay, dynamite नहीं, dynamic. Dynamic का मतलब होता है moving. Right now it's moving in action, right? And static यानी suppose one statue is there, so statue is not going to move. जैसे कि अगर आपके बाजू में अभी कोई बुक पड़ी है, it's not going to move, है ना? खुद से वो मूव नहीं करेगी. Right now it's in a static condition. Until and unless if you are going to touch it and you are going to pull that, pull करोगे then only it's going to move. Bicycle है, right now it's in a dynamic condition if you are going to pedal it, right? Can we say that? So static form of electrical charges we need to understand, and dynamic. Dynamic we are not going to consider. That we will study in electric current and effects. Fine, chemical effect of electric current. Fine. मैम Right आई now we will आस्क understand. समथिंग. मैम वो अगर आपने बोला जो डायनामिक होता है वो मूवमेंट वाला और वो स्टैटिक होता है वो ऐसे मूवमेंट भी नहीं. तो हाँ. अगर हम वो जो फैन होता है उसकी स्विच होती है वो हाँ. स्विच अगर हम ऑफ कर दे तो करंट स्टैटिक हो जाएगा. करंट का मतलब क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, वाटर करंट, विंड करंट मींस व्हाट? मैम विंड करंट मतलब जो विंड मिल घूमता है और उससे जो जनरेट होता है ना वो. Just a second, beta. Who was that? मैम यश.
नहीं नहीं, बैकग्राउंड में किसी की आवाज है इसलिए. That was from your side, बेटा? No, ma'am. Fine, fine. See, my point is that हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैम इलेक्ट्रिक एनर्जी का से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी और वाटर हाँ, वाटर okay, इलेक्ट्रिसिटी. coming back to that point. ठीक है. The point is that static का मतलब है जैसे आपका बैटरी सेल है, अगर किसी के साथ उसको आपने कनेक्ट नहीं किया है तो अभी वहां पे चार्जेस स्टिल फॉर्म में है, क्योंकि वहां पे हम ड्राई बैटरी सेल यूज कर रहे हैं, ड्राई है. बट अगर हम अभी स्विच ऑन करेंगे, राइट, एट दैट टाइम योर करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. करंट यानी क्या? विंड करंट यानी क्या? करंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स राइट नाउ मूविंग. ओके, वाटर करंट डायनामिक फॉर्म में आएगा. राइट नाउ इट्स मूविंग. अब बात ये हुई कि करंट का मतलब ही यही है कि वो फ्लो करेगा. जैसे हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है तो स्विच ऑन करोगे, एट दैट टाइम इज गोइंग टू फ्लो. बट ड्राई बैटरी सेल्स जितने भी होंगे, इट्स नॉट गोइंग टू फ्लो. जब आप उसको कनेक्ट करोगे एक मेटालिक कनेक्टर के साथ, तभी वो पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, है ना. 7th स्टैंडर्ड में अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स तो पढ़े, सर्किट, राइट, वो आपको पता है. तो ये दो वर्जन हो गए, यानी स्टोर अमाउंट में है. जब तक आप उसको किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, राइट. अब ये समझ में आया पहले की स्टैटिक फॉर्म है. वी विल टेक वन सिंपल एग्जांपल, राइट. You will see that in winter season or sometimes even in summer season, okay, you'll find out that some of the things those are made up of plastic, and sometimes directly plastic polythene will stuck with our hand, or sometimes while you are removing your sweater, okay, at that time you will feel And that electric current sounds came. right. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Ma'am, Exactly. even in some blankets, if we rub our hands Yes, like this, ma'am. the current, we And see if you current. have If in our pillow we rub our hands, then it will work in that also. yeah, see the point And is, ma'am, have you ever noticed, beta? Yes. ma'am, when the two persons track. Yes. Once we will take all the examples. Fine. Before that, what exactly we are trying to do here? I have given you one statement that for lighting, charges are responsible. But as a science student, you are not going to believe it. We need some fact, we need some proof, we need to perform some experiment. The charges, something like charges is present in this world, है ना? तो वो prove करने के लिए हमारे पास बहुत सारे experiment and activities है, right? Now the thing is that suppose consider बहुत ही अच्छा example. In winter season, we are using those kambal, bedsheet and all, right? But regularly, every day we are not washing them, है ना? That's why what will happen at the time of, okay, during that night time, while you are going to cover yourself with a towel, have you ever seen that little spark? ये कभी किसी ने देखा? Yes ma'am. Yes, मैंने ma'am. बहुत बार देखा है मैम, बहुत बार Ma'am, I was talking about that only. एक Yes, साउंड होगा, दूसरी लाइटनिंग होगी, ठीक है? That you will see. अब ये कंबल वाले केस में ज्यादा कब देखने मिलेगा? जब हम उसको रेगुलरली वॉश नहीं करते. ये रीजन बाद में बताऊंगी, ठीक है? रेगुलरली हम स्वेटर को हर रोज जैसे कपड़े को अभी हम करते हैं वैसे वॉश नहीं करते स्वेटर को, है ना? हर रोज नहीं करते. वी विल डू दैट विद इन 1 वीक और समथिंग लाइक दैट. और कई बार तो पूरा विंटर भी वो चलता है स्वेटर, है ना? क्योंकि अहमदाबाद में इतनी गर्मी नहीं होती, राइट? सो व्हाट विल हैपन, दिस चार्जेस जो स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अभी साइड पे रखेगी. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब ये जो स्टैटिक फॉर्म में वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे. बट जब वो फ्लोइंग कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वी आर गोइंग टू गिव दैट वर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अगर मैं बोलूं कि आपकी वाटर पाइपलाइन में अभी क्या फ्लो हो रहा है, तो यू विल से वाटर, व्हाट इज फ्लोइंग, राइट? इफ आई से इलेक्ट्रिक वायर में क्या फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है, Electrons are Electrons are flowing. राइट? ओके, अब बात आई स्टैटिक चार्जेस की. अब ये जो चार्जेस है आए कहां से? सपोज यू विल मूव एंड वॉन्डर ऑल ओवर द प्लेस, है ना? पूरा दिन आप घूमे और रात में वो कंबल लगा के सो गए. जितने भी आपके बॉडी के सरफेस के ऊपर चार्जेस बिल्डअप हुए हैं, बिल्डअप यानी कैसे? ये कुछ ऐसा है कि समर सीजन में गलती से मेटालिक वायर जिसपे हम कपड़े सुखाते, गलती से टच करके होगे तो पता होगा, है ना? झटका लगा है कभी? या Yes, फिर ma'am, मुझे metal लगा Yes, है. ma'am. टच कर ली होगी. तो व्हाट इज दैट? दैट चार्जेस विल बिल्ड अप ऑन दैट सरफेस, है ना? बिल्डअप यानी क्या? वो खुद से तो वो नहीं कर सकते, तो कहीं से सपोज आपने टच किया तो आपसे वो चार्जेस वहां पे लग गए.
अब जब तक कोई दूसरा पर्सन वहां पे जाके उसको टच नहीं करेगा, यानी उसको मूव नहीं करेगा, तब तक वो वहीं पे पड़ी रहेगी, बिकॉज वो वहीं पे रहेगा। ओके। अब ये स्टैटिक चार्जेस हो गए। अब मैम आई हैव क्वेश्चन। यस बेटा। मैम जब हम किसी को छूते हैं, ऐसे किसी को छूते हैं फिर भी ऐसे करंट लग जाता है, ऐसा होता है? That's what, इसलिए मैं आपको क्या बोलती हूँ कि एक बार हम पूरी लिंक खत्म करेंगे ना, तो शायद आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट 10 मिनट्स मुझे दे देना, उस टाइम पे आपको जो क्वेश्चन करने हम ले लें, है ना। पूरा बेस एक बार क्लियर हो जाएगा ना बेटा कि क्यों है। आप स्वेटर वाला एग्जाम्पल ले लो, कोम वाला ले लो, बलून वाला ले लो, या ह्यूमन बीइंग वाला ले लो, कोई भी ले लो, सबका आंसर एक ही मिलेगा फिर आपको एट द एंड, है ना। मैम यस बेटा। मैम कैन यू रिपीट दैट the positive charges and negative charges, what is in it? हाँ हाँ, अभी उसको थोड़ी देर साइड पे रखो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं, व्हाट आर दोस, उसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जो अभी अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई बेटा, एट द एंड क्या होगा, एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स राइट नाउ वी नो दैट एट द एंड इट्स मेड अप ऑफ एन एटम। जैसे सेल एक सेल से नहीं होगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, वैसे ही बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। यू नो दैट व्हाट इज मैटर, any object which will occupy some space and having some mass. तो at the end ये मैटर किससे बना है, एटम से ही बना, एटम। फाइन। तो अब ये एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ना तो न्यूट्रल एंड नेगेटिव है। हाँ बोलो बेटा। I was saying that only. हाँ प्लीज, I'm requesting last time, if it's question I can understand, but if it's not in between, please don't disturb, okay? In between let me, you otherwise you'll not understand बेटा, ये concept clear नहीं होगा। I know that you know the examples, fine, आपको पता है बहुत सारी चीजें, एक चीज मुझे concept clear कर लेने दो बस। मैम पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स, अभी क्या बताया मैंने, यश आपने न्यूट्रॉन्स के बाद क्या बोला, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बाद, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बाद क्या आता पूरा है? स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, अगर आप मुझे बोलने दोगे तो मैं पहले फिनिश करूंगी, फिर आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, है ना, वरना हम ऐसे ही आपके क्वेश्चंस के साथ 5:30 हो जाएंगे आराम से। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेटा कि एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो आपका पूरा, ये कुछ ऐसा है कि हमने स्टार्ट ही नहीं किया और आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग, क्वेश्चन आने ही चाहिए, है ना, बाय डिफॉल्ट, ना आए तो प्रॉब्लम है, बट एक बार वो एक, चलो साइड पे रखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइन। व्हाट इज दैट एग्जांपल, मैम you are not audible. yes beta, I am not saying a single word, just give me a moment, Okay. okay, I just need to drink some water, that's why, fine, okay, coming back to you। अब बोलो, क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो सारे के सारे, आई नो कि बीच में ही हो गए, ठीक है, स्टार्ट करें अभी। हाँ बोलो मैम जैसे पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स जो नेगेटिव भी नहीं होते वो पॉजिटिव भी नहीं होते वो न्यूट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपका आंसर देने के लिए मुझे एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि चार्जेस क्या है ना, दैट आई नीड टू प्रूव इट फर्स्ट। व्हाट आर द चार्जेस फ्रॉम वेयर वी हैव डिस्कवर्ड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ समथिंग लाइक चार्ज, है ना। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ओनली, सीधा वहां पे नहीं आएंगे, है ना, वो प्रूव चार्जेस वर्ड आया कहां से, इसी थियरी के ऊपर जा रहे थे, फाइन। अब प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इट्स समथिंग लाइक मैथ्स में प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो कभी ये पूछा था कि प्लस और माइनस क्या है, व्हाट इज इट, क्यों नहीं पूछा मैम? क्योंकि वो एक थियरी है, क्योंकि वो थियरी है, तो यहाँ पर भी एक थियरी है बेटा, साइंस में भी एक थियरी है ना, हम आज दोनों को समझेंगे, व्हाट इज दैट,
इन साइंस एंड मैथ्स मैम बट साइंस में क्यूरियोसिटी होती है, थियरी कैसे बनी? हाँ तो हाँ, मैथ्स में भी मैम। क्यूरियोसिटी होती है। देखो साइंस एंड मैथ्स अलग नहीं है, नॉट इवन कोई भी सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। यू कैन रिलेट इट वो एवरीडे कोई भी आप साइंस का टॉपिक लो, मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ऑलवेज, है ना। दोनों। अच्छा चलो इसके ऊपर नहीं जाते हैं वरना फिर से ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आपका क्वेश्चन जो था कि पॉजिटिव क्यों है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन जो है नेगेटिव, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल। मैं ना तो मैं हाँ में हूँ ना तो मैं ना में हूँ, मुझे हाँ या ना दोनों में से कुछ नहीं बोलना। होमवर्क किया, एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना, तीसरे को कोई आंसर ही नहीं देना है ना। आई एम न्यूट्रल, आई डोंट बिलीव इन होमवर्क मैम। ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट। अब ये आपने 7th स्टैंडर्ड में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था। यस एसिड मैम, यानी एसिडिक कंडीशन, बेसिक Acidic यानी condition. बेसिक कंडीशन, है ना, Base बेस यानी condition. बेसिक कंडीशन। अब Yes, वहां पे ma'am. एक बीच में कौन सा वाला था? सॉल्ट मैम, सॉल्ट। बीच में यानी कौन सा वाला था? वो एसिड बेस। और तीसरा पोर्शन जहाँ पे 7 अगर आपको मिलेगी मैम न्यूट्रल। हाँ, ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। मुझे दोनों में से किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है, ना Yes, तो ma'am. कांग्रेस ना ही भाजपा, ना जो बाकी बची वो खुद की। Yes, ma'am. अब ना तो खुद की, ठीक है। अब प्रोटॉन का मतलब है, अच्छा चलो उसके लिए आपको एक ये बात समझनी होगी। सपोज कंसिडर यश यू आर हैविंग 3 chocolates or 4 chocolates, consider, okay, and Sagnik, you are having, consider that if you are having 4 chocolate and you are having, okay, what happened beta? Yes मैम, आप बोलिए। I can see Yash actually, that's why, because he will ask that question once again, and this question is okay, fine. So coming back to that point, if Yash is having 4 chocolates, fine, and Sagnik, you are having 1 chocolate. If he is going to give you 1, so you are also having 2 chocolates and he is also having 2 chocolates. Both of you are balanced, है ना? No one is going to quarrel, है ना? झगड़ा नहीं होगा कि तुझे क्यों ज्यादा मिले और इससे क्यों कम, ठीक है? अब the thing is that this is the balancing act. ऐसे ही एटम के अंदर बैलेंसिंग एक्शन होता है, अभी वो समझ में नहीं आएगा। बट प्रोटॉन अपने जो प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज, अब पॉजिटिव यानी वो लोग पॉजिटिव, जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो डोनेट करते हैं, नेगेटिव होते हैं वो बोलेंगे कि नहीं हम क्यों डोनेट करेंगे कोई चीज, है ना। डोनेशन के पहले हम खुद को तो दे दे कोई चीज, फिर हम किसी को जाके डोनेट करेंगे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा है, पॉजिटिव यानी अगर कोई एटम अपने पास से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और वो किसी को दे देता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा पॉजिटिव। वो अभी भी समझ में नहीं आएगा, चार्ज आयंस, है ना। Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है। Cl एक्सेप्ट कर रहा है, फाइन। अब ये गुड और बैड वाला पॉजिटिव नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब थर्ड एग्जांपल, जब भी आप अपने कोम करते हो हेयर, राइट, and then if you are going to bring it in close vicinity of those chunks of papers or small pieces of papers, तो वो अट्रैक्ट करता है। दूसरा एक एग्जांपल, जब 2 बलून को या फिर कोई एक बलून को आप अपने हेयर पे रब करोगे, ऑयली नहीं होना चाहिए, है ना, नॉर्मल है, ठीक है, और फिर उसको आप दूसरे बलून के सामने लाओगे तो वो दूसरा बलून आइदर तो उससे अट्रैक्ट होगा या फिर उससे दूर जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है ना, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा? हम अट्रैक्ट मैम दूसरे चार्ज चला जाएगा, वो रिपेल हो जाएगा। बट अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट होगा, बेटा अट्रैक्ट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये किसकी यहाँ से आवाज आ रही है? फाइन। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म में समझ में आया था बेटा, ठीक है। अगर नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर भी अगर एक चार्जेस, समझ लो कि एक बलून के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन्स है बट बहुत कम है ना। जैसे कि पानी पूरी के स्टोर पे भीड़ ज्यादा होगी, करेले के जूस पे कमी होगी, है ना। इट्स समथिंग लाइक दैट, फाइन। तो हमने ये वाला एग्जांपल भी डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो गए। अब समझ में आया? कुछ समझ में आया अभी? यस मैम, आया अगर मैम। दोनों पे अगर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है तो ये रिपेल हो जाएंगे, यानी आपके बलून अलग हो जाएंगे, ठीक है।
अब एक और चीज, अभी कोई क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है, पहले सुन लेना, थोड़ी सी कथा सुन लो, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। फाइन। नाउ कमिंग बैक टू 1 पॉइंट, फर्स्ट प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ कैसे देखे? मैम ने तो बता दिया कि चार्जेस है, बट मुझे बिलीव नहीं करना, दैविक बताएगा कि मैं क्यों बिलीव करूं, है ना। आई विल जस्ट चेक इट प्रैक्टिकली, आई विल चेक इट, है ना। चार्जेस आए कहाँ से, और दो टाइप के ही चार्जेस क्यों है ना, वो कैसे प्रूफ होगा। सो वी आर गोइंग टू सी वन एक्टिविटी। ओके, सबसे पहले तो चार्ज पार्टिकल की एक डेफिनेशन दी गई है, that when plastic refill is rubbed with a polythene, it acquires some electrical charges. Acquire यानी वो गैदर करेंगे चार्जेस, ठीक है। When a plastic comb is rubbed with a dry hair, it acquires small charges. So the objects are called charge objects. Charge objects यानी क्या हो गया? If they are acquired यानी क्या, कहीं से वो चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, उनको मिल रहे हैं। Fine. So they are acquiring that charge. Fine. So those are known as charge particles. Can we say ourselves as a charge particle? Charge body बोल सकते हैं, क्योंकि we are also charge particles, है ना। जब भी हम स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर के ऊपर के पार्टिकल्स हम पे ट्रांसफर होंगे और हमारे स्किन के ऊपर वाले पार्टिकल्स वहां पर भी ट्रांसफर होंगे। सेम चीज होती है जब आप किसी भीड़ वाले इलाके से विंटर में पास हो रहे होते हो, तब आपको स्वेटिंग नहीं होता है, दृष्टि स्वेटिंग नहीं होता है। इसीलिए अगर गलती से किसी के हाथ से आप टच होके गए, है ना, जिसके बॉडी पे स्किन और स्किन के ऊपर अगर हेयर भी ज्यादा है, एट दैट टाइम यू विल फील दिस जर्क, एक झटका लगेगा, है ना। यस मैम। उसके बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स उसे ट्रांसफर हो रहे हैं उस टाइम पे। तो ये जब ट्रांसफर होता है, ये कुछ ऐसा है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल वायर जुप टच कर दिया तो स्पार्क होगा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जो इंसुलेटेड आपके वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, अगर इसको आप कट ओपन करोगे, ये वायर को अंदर कॉपर के वायर्स होंगे। अगर वो अगर आपने साइंस का प्रोजेक्ट किया होगा तो पता होगा कि एक रेड एलिगेटर होता है और एक ब्लू एलिगेटर। अगर टच करोगे यू विल सी दैट स्पार्क, है ना, स्पार्किंग। यस मैम। अब वैसा ही स्पार्क होता है जब बेटा दृष्टि आप टच कर जाते हो किसी और की बॉडी को, है ना। विंटर में क्या होता है, स्वेटिंग नहीं होता है, स्किन ड्राई होती है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे गैदर होते जाएंगे, वो तब तक वहीं पर रहेंगे जब तक उसको कुछ और टच नहीं करता, है ना। ये कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे स्ट्रीट पे खुले वायर्स जिसके अंदर से लाइव करंट पास हो रहा है ना, बट इतना जोर से नहीं होता हमारे बॉडी पर, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि उस टाइम पे आप उसको टच कर जाओ, ठीक है, दोनों। अब वो भी एग्जांपल लेंगे डिटेल में। कमिंग बैक टू फर्स्ट टॉपिक, here we are having few examples. Charge bodies यानी क्या, they are acquiring some charges, it can be positive or it can be negative. Fine. उनके ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर ऑलरेडी, not only surface but the body contains the charges. Okay. Refill polythene, ये वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया, balloon, eraser and wool, and steel spoon and woolen cloth, that we will see. Our first experiment to understand that there are two types of charges present, okay, and their interaction, how they are going to interact. So first we have discussed if, that this is important, okay. Please mention, please note it down while I'm saying that, highlight this portion, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों में कंफ्यूजन आपको होगे, और वो दो चीज मैं आपको बता दूंगी बाद में, सिर्फ उसी टाइम पे वहां पे हाईलाइट कर लेना। ओके मैम। First activity, inflate two balloons, okay, hang them in a such a way that it's not going to touch each other. We are going to keep some gap in between. Fine. We are going to rub both of the balloons with the woolen cloth. Okay, woolen cloth से हम वहाँ पे rub कर रहे हैं, and we need to see that what will happen in between them, what kind of interaction that we are going to see, that we need to notice, right? So same thing, that is our first observation. Let us repeat the activity with pan refills, and we are having those refills right now. We are using use and throw. Rub one refill with the polythene and place it carefully in a glass tumbler. It's made up of, it should be made up of glass and not the plastic, using the tumbler as a stand. Here, this is the image, okay.
वहां पे रखनी है। हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है। टू प्रूव व्हाट, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको प्रूव करना है देयर आर टू पोल्स, है ना, मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो हमें कब पता चला था, है ना, जब वो रिपेल भी हुआ और अट्रैक्ट भी हुआ। अट्रैक्ट हुआ तब वो अलग साइड थी और रिपेल हुआ तब सेम साइड थी, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे क्या प्रूव करने जा रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस। Rub the other refill also with the same polythene and bring it close to the charge refills. Charge refill यानी हमने उससे किससे रब की थी, पहले पॉलीथीन से, और दूसरी किससे हमने रब की, दूसरी रिफिल को हमने किससे रब की, पॉलीथीन से। अब इन दोनों को अगर हम नजदीक लाएंगे, at that time what will happen, but make sure while you are doing this experiment you are not going to touch it with the hand, वरना क्या हो जाएगा, it's something like earthing. Earthing यानी we will just come back to that point. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, is there any effect on the refill in the tumbler, or do the two attract each other or repel each other, right? So in this activity what we will see, charge objects that were made up of same materials, they are going to repel each other, right? If two charge objects made from the different materials, they are going to attract each other. So if we are going to rub a refill and place it gently in a glass tumbler, then what will happen? अब क्या कर रहे हैं, देखो ये तीनों डायग्राम को अभी यहाँ पे आराम से देखो। सबसे पहले we will see that video as well, okay? यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, सपोज अगर आपने इस बलून को सेम ही प्लेस पर से रब किए, दोनों बलून को, जैसे कि मीत ने ये दोनों बलून को अपने हेयर पे ही रब किए और फिर साथ में रखा है हैंग करके, तो क्या होगा, वहां पे किसके चांसेस ज्यादा है, रिपेल के या अट्रैक्ट होने के या फिर रिपेल? देखो पॉसिबिलिटी दोनों है, ठीक है, बट क्योंकि सेम प्लेस है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी, रिपेल होने की, क्योंकि रिपेल चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर में हमने रिफिल रखी है जिसको हमने एक पॉलीथीन से रब किया था, और दूसरी रिफिल को भी हमने पॉलीथीन से रब किया, और दोनों रिफिल को नजदीक में लाके देखा तो वहां पर भी रिपेल होगा क्योंकि हमने सिर्फ, राइट। बट अगर ये वाला बलून जो हमने मीट के हेयर से रब किया था, अगर उसे हम रिफिल के नजदीक लाएंगे, सो हियर यू अट्रैक्ट होगा बिकॉज वहां पे दोनों चार्जेस अलग हो सकते हैं, अलग अलग। यहाँ पे हमें कभी भी देखो, कभी किसी मैग्नेट पे ये नहीं लिखा होगा कि ये नॉर्थ साइड है या साउथ साइड, है ना, राइट। यहाँ पर भी ये नहीं लिखा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉसिबल है, बट यहाँ पे हो सकता है ज्यादा पॉजिटिव हो तो दूसरे पे नेगेटिव। हमें कभी ये नहीं पता चलेगा कि ये पॉजिटिव, ये किस केस में पता चलेगा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तब। ये स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे चार्जेस तो है बट हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इतना पता चल सकता है कि दोनों पे डिफरेंट साइड पे डिफरेंट चार्जेस है या सेम। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। चार्ज बलून्स रिपेल द चार्ज बलून, ये सिंपल है, ये हमारे मैग्नेट की तरह ही है। चार्ज बलून रिपेल द चार्ज बलून मतलब क्या, अगर दोनों चार्ज है, अगर सेम चार्जेस है, वैसे ही चार्ज करेंगे। चार्ज रिफिल, सबसे पहला पॉइंट हम क्या साबित कर रहे हैं कि दोनों चार्ज है। चार्ज यानी अब उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, वेदर इट्स प्रोटॉन और वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन, मींस पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करने वाले, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, फाइन। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे है, बट द चार्ज बलून अट्रैक्ट दी चार्ज रिफिल, क्योंकि दोनों अलग जगह पर से रब होके, यानी दोनों हो सकता है कि अलग टाइप के चार्ज पार्टिकल्स लेके आए, है ना। अब ये जो डेल्टा वर्जन वाला कोरोना का एग्जांपल है ना, उसमें ये माना जाता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन कोरोना एंड कोरोना और स्ट्रेन फ्रॉम द यूके, है ना। इन दोनों का म्यूटेंट वर्जन बन के कुछ डेल्टा और नई वैरायटी आई है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन, फाइन। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव, फाइन, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब ये वाला पॉइंट यहाँ तक रखो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। यश मैम, वो अगर वो दृष्टि ने बोला कि वो किसी भी ऐसे रब करेंगे, फिर ऐसे अगर उस पर चार्ज पार्टिकल्स हो गए, बराबर,
तो अगर हम विंटर में स्वेट आएगा तो फिर किसी को ऐसा स्वेट नहीं आएगा तो ऐसा करंट लगेगा, पर अगर हम पूरे गीले होते हैं और हमारे पे चार्जेस नहीं होते तो अभी क्यों हमें करंट लगता है? ओके ग्रेट। अब if you are wet है ना मानसून सीजन में, बेस्ट एग्जांपल, अगर मानसून सीजन में आप गीले होगे ना और उस टाइम पे अगर आपको किसी के गलती से हाथ लग जाएगा तो वो कभी करंट, वो वाला स्टैटिक करंट आपको नहीं लगेगा पहली बार। तब कौन सा करंट लगेगा पता है? गलती से अगर आपने किसी को टच कर लिया ना यस मैम। तो वो लगेगा, क्योंकि वाटर मैम कंडक्टर। मैम सुना ही नहीं दे रहा है, आप जो बोल रहे हैं ना वो किसी के बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। हाँ बेटा प्लीज म्यूट कर दो। ठीक है, फिर से रिपीट कर लूं। अब आप जो बोल रहे हो बेटा, वो विंटर सीजन में जब एक ह्यूमन बीइंग की स्किन दूसरे ह्यूमन बीइंग से टच होती है और वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है कि विंटर में 2-3 दिन से ना आया ना हो, या फिर जनरल ऐसा नहीं होता है, बट द रीजन इज दैट कि विंटर सीजन में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है ना, और दोनों की स्किन अगर उस टाइम पे ड्राई है और उस टाइम पे चार्जेस, इवन आज की तारीख में अभी भी चार्जेस बिल्डअप होते ही है हमारे बॉडी पे, बिकॉज राइट नाउ इट्स समर, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग करती है ना, तो यू विल सी कि वो स्वेटिंग की वजह से वो चार्जेस वहां पे नहीं रह पाएंगे। स्वेटिंग के साथ जब आप कपड़े चेंज करोगे उसी के साथ चले जाएंगे, फाइन, इट्स समथिंग लाइक दैट। बट जब आप बात करते हो कि आप गीले होते हो और किसी चीज को आप टच करोगे जो कि इलेक्ट्रिकल है, तब वो शॉक लगेगा, और वो भी तब लगेगा कि जब वहां पर से कुछ लीकेज हो रही हो, वरना अगर वो प्रॉपरली इंसुलेटेड है तो कभी भी चांसेस नहीं है कि आपको वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। ठीक है, उसके लिए मैम आएगा। हाँ मैम वो इंसुलेटेड मतलब मैम कि वो कॉपर से करेंगे इंसुलेट या फिर प्लास्टिक से? प्लास्टिक और रबर बेटा, यू हैव स्टडीड दैट नो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन 7th स्टैंडर्ड, है ना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंडक्टर? सपोज इफ आई विल टेल यू वन एग्जांपल, है ना, इफ वी आर हैविंग मस्किटो नेट, so mosquito cannot pass through that net, even pigeon cannot pass through that, but if we are having pigeon net, तो pigeon net में से तो mosquito pass हो सकता है आराम से, है ना। अब कंडक्टर यानी कोई ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है। कंडक्टर दो टाइप्स के अंदर डिस्कस किए, वन इज फॉर हीट, सेकंड इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। पेन, हमारे जितने भी पेन होते हैं किचन एक्सेसरीज में, जो उसका हैंडल होता है, it's not made up of metal because metal is very good conductor of heat. Yes ma'am. Your handle is made up of, it can be wooden, it can be rubber, it can be plastic. क्योंकि ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर यहाँ से आगे कुछ जाने ही नहीं देगा, वो हीट को आगे ही नहीं जाने देगा, ताकि आप यहाँ से जो हैंडल है वो कभी गर्म नहीं होगा और आप पकड़ सकोगे। इंसुलेटर यानी इट्स कुछ इस तरीके से है कि टू इंसुलेट, आपका कॉपर वायर है, इसको कोट करके रखा है, आपके प्लास्टिक कोटिंग है, ठीक है। तो कॉपर वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो बाहर ही नहीं आ सकता, अगर इसमें कोई कट होगी तभी वो लीक होगा, ठीक है, तभी करंट के चांसेस है। नाउ हाँ जिमित। Ma'am, that I have a doubt, like when our charges transfer to that clothes, and when the clothes when we transfer our charge when we transfer our charges to that string on which कंफ्यूजन है, क्वेश्चन क्या था पता नहीं? मैम हिंदी में बोल दो। बोल दो बेटा। मैम जब हम लोग वो जो स्ट्रिंग होती है ना मेटल की, उसको टच करते हैं तो हमारे चार्जेस वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो जो चार्जेस ट्रांसफर हो गए और अगर हम लोग ने वहाँ पे ही कपड़े सुखाए तो वो जो चार्जेस थे वो कपड़े में चले जाएंगे। हाँ, वो बिल्डअप हो जाएंगे, बट उस टाइम पे आपके कपड़े गीले हो गए, राइट, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, वो गीले हो गए तो वहां पे चार्जेस, ये कुछ ऐसा है जैसे पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो पानी के साथ मिलने के बाद भी ना चार्जेस की इफेक्ट कम होगी, क्योंकि ये स्टैटिक फॉर्म में चार्जेस है। अगर गलती से समझ लो कि गीली उंगली से वो स्विच टच कर ली तो भले ही वहां पे स्टैटिक फॉर्म में चार्जेस नहीं है, वहां पे अभी फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसलिए हमें जो ये वाले झटके लगते हैं ना कि किसी स्किन को टच कर गए या मेटालिक वायर को टच कर लिया समर में, वो बहुत छोटे छोटे वोल्टेज भी नहीं बोल सकते, बहुत छोटे होते हैं, है ना, जो हम टॉलरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चार्जेस होते हैं ना, वो टॉलरेट नहीं कर सकते, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है कि वहां पे हम एक और चीज स्टडी करेंगे, अर्थिंग, ठीक है।
यानी चार्जेस तो फिर कहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, मैम अर्थिंग में स्टडी करेंगे, बट वो पॉइंट अभी नहीं लेंगे, हाँ, अभी कोई वो डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू वन पॉइंट, माइक्रोस्कोप सबको पता है, इफ वी हैव टू विजुअलाइज Yes, ma'am. माइक्रोस्कोपिक, है ना, अगर कोई चीज बहुत ही छोटी है जैसे सेल, तो हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। स्कोप मीन्स विजुअलाइज इट, मीन्स वी आर गोइंग टू मेक दैट लार्जर विजन, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल, Ma'am, I'm very हमको छोटे small. चीज को I'm बड़ा very करते small. हैं। जिसको हम I'm very नेकेड आई से small. देख नहीं सकते, बहुत Micro. ही Yes, ज्यादा, ma'am. ठीक है, इसलिए माइक्रो बोला जाता है। अब माइक्रोस्कोप का मतलब ये है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या, टू आइडेंटिफाई वेदर चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट और Body or not? राइट। ये नहीं पता लगा रहे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है या नहीं, हम ये पता लगा रहे कि इस बॉडी पे चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, हमारे पास एक टेस्टर रहता है, जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए या रिपेयरिंग के लिए आते हैं ना, उनके पास हमेशा टेस्टर क्यों रहता है, बिकॉज उनको पहले ये चेक करना पड़ेगा जो भी चीज में रिपेयर करने आए, मतलब क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम है, राइट। इफ प्रॉब्लम इज देयर एंड एट दैट टाइम ही इज गोइंग टू टच दैट, it may be dangerous, so we need to touch it with the help of tester. टेस्टर हम डिस्कस करेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। वैसे यहाँ पे हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, वेदर सपोज इफ आई एम हैविंग वन बॉल पेन, that ball pen is consisting of any charge or not, है ना, उसके ऊपर अभी यस चार्ज मैम, है या नहीं, ये देखने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप कोई भी घर पे बना Machine. ओके। अब मॉनसून सीजन में क्या होगा, ये चार्जेस के एक्सपेरिमेंट्स क्यों थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है वो कैसा होगा मॉनसून में, ड्राई नहीं होगा, Ma'am, moisturize. नहीं हो, मॉइस्चर होगा, Moisturize. राइट। मॉइस्चर होगा मतलब क्या, अगर पानी प्रेजेंट है ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप रिवर के अंदर कुछ डालोगे तो रिवर के अंदर बह जाएगा, है ना, और पानी की क्वांटिटी के आगे फिर आपके चार्जेस छोटे पड़ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है, जब ह्यूमिडिटी मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, तो ये छोटे छोटे से जो स्टैटिक फॉर्म में चार्जेस एक्वायर्ड हुए हैं वो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ओके, या फिर अगर रेनफॉल होगा तो उसी के साथ बह जाएंगे, फाइन। अब ये चार्जेस के बारे में मैं कब पता चलेगा, जब होती है लाइटनिंग, ओके। अब हम क्या ये कह सकते हैं कि पूरी समर सीजन इतने सारे ह्यूमन बींग्स, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स, सब लोगों ने अलग अलग एक्वायर्ड किए होंगे चार्जेस, है ना, बहुत सारे चार्जेस बिल्डअप हो चुके हैं, ओके। इट्स समथिंग लाइक यहाँ पर भी चार्जेस बिल्डअप हुए हैं, और इवेपोरेशन पानी का हुआ पूरे समर सीजन, ओशन से पूरा पानी इवेपोरेट होते होते ऊपर गया और उसका कंडेंसेशन होके रखा है वहां पे। कब वो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आएगा, जब प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर कब चेंज होगा, अब उस पॉइंट पे आते हैं। इससे पहले एक बार इलेक्ट्रोस्कोप देखते हैं, बहुत ही इजी है, एक बार सुन लेना फिर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, जो एल्यूमिनियम फॉइल रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है, ये एल्यूमिनियम फॉइल एक्चुअल में क्या है, मेटल की हम शीट ऐसी बना सकते हैं, फाइन। वो मेटल नॉन मेटल में भी स्टडी करेंगे, यस मैम, चैप्टर 4 यस। इन आवर स्कूल इट इज डन। चलो एक काम करो, हाँ, ये वाला पैराग्राफ है ना बेटा, अमित यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो ना। इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड। Yes, ma'am. It is a convention to sell. Ma'am, that is CELL, तो वो सेल होता है, ये कॉल है, कॉल। all the change acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. ओके, अब यहाँ पे रुक जाओ। अब ना एक मिनट, अभी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल्स आएंगे, बहुत सारे टाइप्स के, यानी सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास रोड है। रोड तो पता है कैसा होता है, रोड पता है ना कैसा होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर वो रोड ग्लास से बना है, फाइन, और आप इसको किसके साथ रब करने वाले हो, सिल्क मटेरियल से, स्पेसिफिकली सिल्क मटेरियल से, ठीक है। एंड द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, यानी समझ लो कि चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड, यानी ग्लास रोड में चार्जेस ट्रांसफर होंगे कहाँ से कहाँ,
सिल्क से ग्लास रोड पे, ठीक है। अब किसके ऊपर नेगेटिव, कहाँ से कहाँ जा रहा है, द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, एक जगह पे पॉजिटिव हो गया, दूसरी जगह पे नेगेटिव है। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw, अब ये क्या हो गया, तीन मटेरियल है, हमने रब किसके साथ किया, सिल्क मटेरियल के साथ रब किया, और उसको किसके पास लेके गए, प्लास्टिक की स्ट्रॉ के पास। या फिर एक और चीज कर सकते हैं, जैसे हमने बलून, बेटा प्लीज वहां से पढ़ना स्टार्ट करो मीत। Yes, ma'am. The other kind of charge is said to be negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is action between the two. What do you think would be the kind? Yes, बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम उसके बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है। ओके मैम अब आ रही है? अब आ रही है। Okay, ma'am. What do you think would be the kind of charge on a plastic straw? You guess the plastic straw would carry a negative charge is correct. ओके अब यहाँ पे रुक जाओ, हमारे पास दो एग्जांपल है, ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया और दूसरा क्या किया, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रब किया। फाइन, नाउ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, क्यों, बिकॉज व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ चार्ज विल बी देयर ऑन योर प्लास्टिक स्ट्रॉ, क्योंकि यहाँ पे कौन से चार्जेस कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, when a charged glass rod is brought near, ये हमने बलून और रिफिल वाला देखा बेटा, तो रिफिल को अगर रब करोगे तो वो सेम जगह से आया है तो वो रिपेल ही होगी, बट अगर रिफिल को बलून के साथ करोगे तो इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट। फाइन, दैट्स इट। सो द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, यानी क्या बात हुई, ये हाईलाइट करो सबसे पहली बात। फिर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम हमें वो वाला यहाँ पे क्यों फिल, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम ये वाले जगह पे इतना जर्क क्यों नहीं फिल होता। मैम हाईलाइट कहाँ करना है, कौन सी लाइन पे? बेटा मैं आपको जो बता रही हूँ वो सुनो, आप क्यों नहीं समझ रहे, ये मैंने जो हाईलाइट किया वो करो। प्रॉब्लम क्या है पता है, आप जो समझे हो ना उसको आपको सही करना है, और दूसरा ये कि मैम हाईलाइट कराओ, यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है, हाईलाइट नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा तो कहीं पर भी जरूरत नहीं है, फिर से रिपीट करने की जरूरत है। चलो एक बार सुन लो, व्हाट इज दैट, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए अगर आप बोलते हो बेटा, जैसे यश ने बोला कि ऐसा होने पर हमें ज्यादा जर्क क्यों नहीं लगता या हर बार क्यों नहीं लगता, तो स्टैटिक फॉर्म है, वो यहाँ से वहां, वहां से दूसरा ऑब्जेक्ट पर घूमते रहते हैं, खुद से वो मूव नहीं कर सकते, अगर कोई टच करेगा तभी ट्रांसफर होंगे, ठीक है, फाइन, या फिर विंड से या ऐसे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट से ही वो ट्रांसफर होंगे। फाइन, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट वंस अगेन, हाईलाइट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, किसी चीज को रब करने पे कैसे चार्जेस जनरेट होंगे, स्टैटिक, they do not move by themselves but they are going to move if they consisting of that electrical current. You have been reading that, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। Yes, ma'am. The electrical changes generated by rubbing a static, they do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. You have been reading about electric current since class 6. The current in a circuit which makes a bulb glow, or the current that makes a wire hot, is nothing but motion of charges. Okay, जब वो मोशन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होंगे, तब इस टाइम पे ये फील करना पॉसिबल है, बट वो कब होगा
जब हमारी बॉडी से चार्जेस कम हो गए तो वो हमें जर्क फील भी नहीं होगा, है ना। कई बार व्हाट वी आर सेइंग इन गुजराती, इफ वी आर हैविंग थिक स्किन, जाड़ा चमड़ीला, है ना, वी आर नॉट गोइंग टू फील इट। अगर छोटा सा अगर कुछ हो जाएगा हमें कट भी, तो हो सकता है वो तभी पता चले गलती से उसके ऊपर सॉल्ट गिर जाए, वरना इतनी बड़ी बॉडी में वो पता भी हमें नहीं चलेगा, है ना। सो दिस आर द चार्जेस। अगर स्टैटिक फॉर्म में कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कम नंबर्स में प्रेजेंट है, वो पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब ऑपोजिट चार्जेस ज्यादा अमाउंट में वहां पे एक्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। मैं करूँ रीड? हाँ करो। The aluminum foil strips receive the same charge नहीं from नहीं the. नहीं, वहां से नहीं, तो मैम आपने कहाँ से स्टार्ट किया? वहां से नहीं बेटा, एक्टिविटी पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है। Okay. एक्टिविटी Take an empty jam bottle. Take a piece of cardboard slightly bigger in size than mouth of the bottle. Press a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. Open out the paper clip as shown in figure 15.4. Cut 2 strips of aluminum foil about 4 cm into 1 cm each. Hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Figure 15.4. Charge a refill and touch it with the end of the paper clip. Observe what happens. Is there any effect on the foil strips? Do they repel each other or attract each other? Now touch other charged bodies with the end of the paper clip. Do foil strips behave in the same way in all cases? Can this ma'am, what is this? Can this के बाद apparatus be used? What's the meaning of apparatus? So apparatus means tools that we are using for experiment. Okay, that is apparatus. Apparatus to be used to detect whether a body is charged or not. Can you explain why the foil strips repel each other? Okay, अब यहाँ पर रुक जाओ। अब क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, राइट? बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। We need to take one jar. Fine. This jar, it should be made up of glass. Then we are going to take one cardboard that is made up of paper, right? One thing we are going to take plastic refill, and second thing something a metallic clip, aluminum foil. Metallic clip अगर नहीं है तो हमारे पास जैसे U पिन होती है ना, U पिन को अगर हम S शेप में कन्वर्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, U पिन जनरली होती कैसी है? कुछ ऐसी होती है, राइट? अब ये U पिन को अगर हम ओपन कर लेंगे तो ये कुछ ऐसे S शेप की ओपन हो सकती है, राइट? इसको हम होल करके एक पोर्शन उसका ऊपर रख लेंगे यहाँ पे, और दूसरा पोर्शन जार के नीचे जाने देंगे। उस जार के अंदर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल कैसी होती है, इजिली उसके अंदर आप होल बना सकते हो। ठीक है, तो उसके टुकड़े वहां पे होल बना के हैंग कर देंगे। अब करना क्या है, हमें एक प्लास्टिक रिफिल लेनी है, राइट? उसको रब करना है और वहां पे नजदीक में जाके ये मेटालिक पिन को टच करवाना है, क्योंकि ये प्लास्टिक जो रिफिल है इट्स एक्वायरिंग सम चार्जेस, और मेटल का मतलब है कि वो चार्जेस इजिली पास ऑन करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल भी वो चार्जेस के सामने रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब क्या होगा, बीच में कार्डबोर्ड है, राइट? कार्डबोर्ड इज टू कवर दिस थिंग्स, ताकि आपकी एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर कोई इफेक्ट हमें और ना दिखे, फैन की या आउटर एनवायरनमेंट की। ठीक है, अब क्योंकि इट्स अ सिंपल सी कंसीडर की एक रूम में, फाइन, आपने अच्छा से इसका एग्जांपल देखा होगा कहाँ पर, अगर पानी गिरा है सपोज, और आपका रूम बंद है, बाहर से पानी गिरा है, वहां पर उसी पानी में एक लाइव इलेक्ट्रिकल वायर गिर गया, वो पानी तो अंदर तक आ सकता है रूम के, भले ही आपका रूम बंद क्यों ना हो, पानी तो आ सकता है। अगर पानी आ सकता है और उसमें लाइव करंट गिरा, तो वो करंट भी उसके साथ पास होगा ही होगा पानी के साथ। गलती से वो पानी को आपने टच कर लिया तो वो आपको फील हो जाएगा अच्छे से, है ना? बाल ऊपर, बाल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, रूम तो बंद है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट तो पास हुआ ना। वैसे ही यहाँ पे कार्डबोर्ड से भले ही आपने उसको टच किया, बट आपने उसको पिन के साथ ज्वाइन करके रखा है, वो मेटालिक पिन है और वो अच्छी कंडक्टर है। ठीक है, जैसे पानी पूरा नीचे से गया था। फाइन, अब क्या करोगे आप,
अब हमने 2 स्ट्रिप क्यों लगाई है? अगर सेम टाइप के चार्जेस हो गए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है। अगर अलग अलग चार्जेस दोनों में पास हुए धीरे से तो वो अट्रैक्ट करेगी, फाइन। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, ये इसका अट्रैक्शन एंड रिपेल कि हाँ यहाँ पे किसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है। आपने जिस रिफिल को रब किया है, ठीक है, उसने एक्वायर्ड किया है वो चार्जेस, कहाँ से, जिसके भी ऊपर रब किया है, वेदर इट्स वूल, वेदर इट्स सिल्क, एनीथिंग, ठीक है। ये वाला हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ तक रखते हैं अभी, फाइन। 1 मिनट है, 1 मिनट वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम अभी सारे क्वेश्चन फिनिश नहीं कर पाएंगे बेटा। यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। हाँ सागरी। यस मैम, मुझे सब पूछा था कि है ना मैम, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा उसमें मैम जो आपने बोला कि एस साइड है, उसमें मैम ये पिक्चर में मैम ये हाँ बोलो बेटा सागरी, यू वर नॉट ऑडिबल, फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ मैम, मैं वो ऐसा बोल रहा था कि हमने जो अभी मैम 15.4 में एक्टिविटी देखी थी ना, उस एक्टिविटी में मैम हमको यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें मैंने एस के साथ एक वी शेप दिया हुआ है, तो मैम वो वी शेप का क्या वर्क है इधर? वो इसलिए कि मुझे ये बताओ कि मेरे पास अगर एक पेंसिल या पेन है, सीधा यहाँ पे मैं कुछ हैंग कर पाऊंगी बेटा? सीधी एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे हैंग होगी क्या? नहीं होगी, इसलिए इसको इसने थोड़ा मोड़ के रखा है ताकि आप हैंग कर पाओ, हॉल करके उसको हैंग कर पाओ, सिंपल है ना, समझ अगर आया? उसको टच अच्छा चलो अगर सुनो सुनो सुनो, टच करेंगे तो एक सिंपल एग्जांपल बेटा, आप हुक क्यों रखते हो? हुक क्यों होता है ऐसे, हुक क्यों होते हैं मुझे बताओ, ताकि आप यहाँ पे कुछ हैंग कर पाओ ना। अगर ये सीधा होगा तो कुछ हैंग कर पाओगे? नो मैम। सिंपल, इसीलिए वो ऐसे है। मैम उसको भी टच करेंगे तो हमको कोई शॉक लगेगा ऐसा, अगर बट उसमें आप अगर हम लोग नहीं इकट्ठा जा कर रहे ले? बेटा, उतने यही बात कर रहे कि इतनी से रिफिल पे कितने चार्जेस हो गए, हमारी बॉडी से तो कम ही हो गए। ओके, we will continue better in next session. It's already 5:30. I need to join 7th standard. Okay, we'll take all the questions in next session. Bye beta. Bye मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? जय। गुड इवनिंग मैम। Good evening, everybody. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैम मैं बाहर हूँ मैम, हम तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता मैम। मैम ठीक, मैम खुद को स्पॉटलाइट पर डाल दो। मेरे पास मैम। ऐसा चलेगा नहीं बेटा जी। हाँ, बाहर बाहर जाके फिर लेक्चर कैसे अटेंड कर सकते हैं हम? मैम रिलेटिव के घर पे हूँ मैम। तो क्या हो गया, रिलेटिव के कैमरा क्यों नहीं ऑन होता बेटा? बाहर मतलब रोड पे हो तो कैमरा ऑन नहीं करोगे ना। मैम मेरे को होस्ट बना दीजिए। मैम 1 से लेके 15 तक के हो गए स्क्वायर रूट। याद हो गए सबको? हाँ मैम याद हो गए। हाँ मैम। यस मैम, याद हो गए। मैम पूछ 1 से लेना। लेकर 15। पूछती हूँ आप लोगों को। मैम ध्रुवी मैम मेरे को होस्ट बना दीजिए। मैम हमें 1 से 15 तक के याद करने थे। हम्म, मैम वो हो गए। डन मैम।